गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब दी मुबारक रसना तो जो बंदना श्रवण की है, ये बंदना बहुत गहरे अर्थ रखती है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ग्रामर है ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਰੀ ਤਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ, ਤੇ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। और किस तरह जानिया? कहन लगे कीनी भगत प्रेम लिवलाई। भगती लोग करते ने, पर जे किधरे भगती विच प्रेम नहीं है तो भगती भगती नहीं है, क्योंकि भगत शब्द बनिया ही भाव तो है। भाव कहते ने प्रेम नूं। बहुत सुंदर वाक है रविदास जी का भी। आप जी कहते ने प्रेम भगत नहीं उपजे। भगती तो करते हाँ, पाठ करते हाँ, सिमरन करते हाँ, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम भगत नहीं उपजे, तांते रविदास उदास। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब महाराज जदों पहली उदासी के दौरान लाहौर जाते हैं, तो आप जी ने की कुछ वेख्या, ते आप जी की रसना चों की वाक निकले सी। अमृत वेले का समा सी। गुरु नानक साहिब ने वेख्या कि हाले जो सूरज जो है वो उदय नहीं होया, लेकिन इत्थे कतलगाह पहला ही शुरू हो गए, बूचड़ खाने पहले ही खुल गए ने, तो इत्थे जीवां की हत्या हो रही है। तो वाक की निकलिया, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। ये बोल गुरु नानक साहिब दे। जिहड़ा लाहौर शहर है, कितना सुंदर नाम है, क्योंकि अरबी अल्फाज है लाहौर। लाहौर तो भाव है कि खुदा दा वसाया होया शहर, उसनों लाहौर कहते हैं, क्योंकि हर एक शब्द का मायना होता है। लाहौर का मायना जे खुदा ने आप ने वसाया है शहर लाहौर। जदों खुदा ने आप वसाया है तो फिर लाहौर शहर जहर का घर ते कहर का घर क्यों बन गया इत्थे? हर वस्तु विच मिलावट है, बोल बाणी विच मिलावट है,
ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੂਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੂਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ,
कथा राहीं कीर्तन ताईं। हुण जदों ये वरसा शब्द की कथा कीर्तन की हो रही है, तो इस बरसात दे नाल जिथे संगत भिजी है उत्थे अमरदास भी भिज गए ने। और किस तरह भेजे ने, कहते ने गुरु अमरदास की अखत कथा है, जो गोविंदवाल की धरती ते अजोके समय दे विच आप जी का जो ज्योति जोत दिहाड़ा है वह गुरपुरब 2-4 दिन इकट्ठे ही मना रहे हैं। दरबार साहिब भी मना रहे हैं, धन गुरु रामदास साहिब की गुरता गद्दी, और गोविंदवाल मना रहे हैं धन गुरु अमरदास साहिब का ज्योति जोत का, जो कि 2 दिन बाद है। गुरु अमरदास की अखत कथा है, एक जी कछ कही ना जाए। कहते ने गुरु अमरदास की कथा अखत क्यों है, इसका कारण समझना। दीवान भावें गुरपुरब का होवे, दीवान भावें रूटीन का होवे, दीवान भावें खुशी का होवे, और दीवान भावें बरसी का होवे, दीवान भावें अंतिम अरदास का होवे, पर धन गुरु अमरदास जी को जरूर याद किया जाता है आनंद साहिब पढ़ के। आप जी की कथा अखत है। आप जी की रसना चों फिर बोल निकले सी। किहड़े बोल? गुरु नानक ने बचन किया सी, लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। और गुरु अमरदास साहब जी की कह रहे हैं, लाहौर शहर अमृत सर सिफती दा घर। हुण लाहौर शहर नूं आप जी ने बना दिता अमृत दा सोमा। ये जो अमृतसर शब्द है इत्थे दरबार साहिब वास्ते नहीं है, क्योंकि गुरु अमरदास साहिब महाराज जदों ये बोल उचारण करते पे ने तो उदों हाले अमृतसर तैयार नहीं सी। आप जी ने इशारा किया सी लाहौर वल, लाहौर शहर अमृत सर, अमृत दा सोमा है, सिफती दा घर है। क्यों? क्योंकि इत्थे जन्म होया गुरु रामदास जी का, भाई जेठा जी का। तो धन गुरु रामदास महाराज भाई जेठा जी के रूप विच जदों बचपन दे विच ही अनाथ हो जाते हैं तो बासर के नानके पिंड आते हैं। तो धन गुरु अमरदास साहिब महाराज आप जी को गोविंदवाल ले जाते हैं। तो गोविंदवाल जदों उत्थे सेवा करते हैं तो आप जी को खबर है कि गुरु अमरदास साहिब दे जो 2 पुत्र ने, बाबा मोहन जी, बाबा मोरी जी, 2 ही बेटियां हन, बीबी भानी जी, बीबी दानी जी। तो जो बाबा मोहन जी सन आप जी ने विआह नहीं किया, बाबा मोरी ने विआह किया सी। आप जी का पुत्र होया गहाँ अनंत ते सुंदर, पोते पड़पोते। बीबी दानी का जो विआह होया सी भाई रामो जी दे नाल, बीबी भानी का जो विआह होया सी भाई जेठा जी दे नाल। आप जी ने फिर ये खिताब दिता, तू तो राम दा दास है। गुरु अमरदास ने कहा सी, तू राम दा भगत है, राम दा दास है। तो जदों ये दोवें ही सेवा करते ने, भाई रामो जी भी ते जेठा जी भी। इतिहास आप जी ने सुनिया है, क्योंकि मैं महीने की भी व्याख्या करनी शब्द की। आप जी ने बचन किया कि एक सुंदर थड़ा चाहिए है जिथे मैं बैठना है, बैठ के मैं कुछ गल कहनी है, संगतां कुछ गल कहनी। ये जो बोल होंदे ने ये 3 प्रकार के होंदे ने। इन्हों कहते हैं 3 शक्तियाँ शब्द दियाँ होंदियां ने, 3 शक्तियाँ। एक होंदी है
व्यंजना, एक होंदी है लक्षणा, अभिव्यंजना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਇਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮੋ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ। पर भाई रामो जी दे विच जो है निमरता नहीं है, और जो भाई जेठा जी ने उन्होंने कोल निमरता है। गुरु अमरदास साहिब महाराज जो शाम को जाके कहते हैं थड़ा ठीक नहीं बनया, तोड़ दवो, तो भाई रामो जी कहते हैं महाराज ठीक ही तो बनया, जिवें तुसीं कह गए सी मैं उस तरह बनाया है। वो वखरी गल है, तुसीं भुल गए हो क्योंकि तुसीं बजुर्ग हो गए हो। भाई जेठा जी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, तो आप जी की जवाब देंदे ने, कहंदे ने महाराज मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक बनाउना थड़ा। आप जी की बुद्धि जिहड़ी है शिखर ते, मेरे ते किरपा करो, रहमत करो, जो थड़ा उस तरह का बन जाए। तो तीजे दिन धन गुरु अमरदास साहिब महाराज की कहंदे ने भाई जेठा नूं गल वकड़ी विच लैके कहंदे ने, भाई जेठा जी थड़ा तो बन गया, बन गया, बन गया, क्योंकि मैनू मिट्टी का थड़ा नहीं चाहिए सी, मैनू हिरदे का थड़ा चाहिए सी। मैं मिट्टी के थड़े नूं की करना है, हिरदे का थड़ा चाहिए है। और हकीकत है हिरदे विच ही निरंकार बैठा है, बैठदा है, जिसनों आप जी कहते हो जां का हिरदा शुद्ध है, खोज शब्द में। एक छोटी जी गल मैनू कहन देना, गुस्ताखी माफ़। 92 तो लैके 95 तक मैं एक अस्थान ते 4 कुछ साल सेवा की। शादरे की गल है, तो हुण करीब करीब 30 साल का वक्त गुजर गया है, करीब करीब। तो कल मैनू उत्थे जाना पिया, कुछ बजुर्ग तो रुखसत कर गए, और कुछ ऐसे जो उस वेले जवान सी हुण वो भी बुढ़े हो गए। मैं निंदा नहीं कर रहा, गुस्ताखी माफ़, जिहड़ी हकीकत गल मैं देखी मैं वो कह रहा, तो फिर वो गल तुसी भी कबूल करना कि किधरे साड़ी भी दशा तो इस तरह की नहीं है। 30 साल पहला उन्होंने जिथे छड़ के आया सी, अज भी उत्थे ही बैठे ने। बोल बाणी विच क्रोध पहला भी सी, हुण भी है। गल्लां विच हंकार पहला भी सी, हुण भी है। और गुरुद्वारे रोज़ आते ने, पर जीवन एक कदम भी नहीं बदलिया, एक कदम भी। और इन्हों वेख के साडे बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। 40-40 साल हो गए गुरुद्वारे जाते, जिथे पहला सी 40 साल पहला, अज भी उत्थे खड़े ने, उत्थे खड़े। तो किधरे ऐसा तो नहीं कि गुरुद्वारे असी रोज़ आते हैं पर उत्थे दे उत्थे ही बैठे हुए हैं, उत्थे दे उत्थे ही बैठे नहीं। जे उत्थे दे उत्थे ही बैठे हो तो एक खुद दे नाल ही धोखा है, खुद दे नाल। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज कहन लगे कि हुण थड़ा तैयार हो गया, हिरदा तैयार हो गया, ते भाई जेठा जी हुण गुरु रामदास साहिब बन गए। सोढ़ी सृष्ट सगल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। जो अज दा महान ते सुभाग दिहाड़ा है, धन गुरु रामदास साहिब जी की गुरता गद्दी का, जो कि आप जी नूं सारियां नूं मुबारक होवे। गुरु रहमतां करन। चलते हुए महीने की जो विचारधारा, महीने का नाम है अस्सू। कहते हैं कि जो महीना गुजर गया, बीत गया, उस महीने का नाम सी भादो। कहते हैं भादो की गर्मी नूं
महसूस करके कहते ने जट जोगी बन जाते हैं। कहते ने जोगी बनना ठीक है, तो इन्नी तपस इन्नी गर्मी दे विच खेती कौन करेगा? कहते ने जोगी बन जाओ, जोगी बन जाओ। और गुस्ताखी माफ, मैं एक गल होर नोट की है, वो ये गल है कि बहुत सारे साडे बच्चे, मुबारक है, गल चंगी भी है, चंगी भी गल, पर माड़ी भी है। बहुत सारे साडे नौजवान बच्चे जिहड़े पढ़ लिख गए ने और नौकरी नहीं मिली जां कारोबार उन्हां दा नहीं चलिया, वो कहंदे ने हुण कीर्तन सिख लवो तो 31-31 हज़ार बेटा मिलदी है, महीने विच 20-20, 25-25 लाख कमाओ, मौज करो। क्योंकि टिकटां भी फ्री मिलदियां ने, खाना पीना भी होटलों में आउंदा है, इस तो वड्डी मौज कित्थे होएगी? ये मौज नहीं है, इहदा लेखा देना पेगा। आप जी जो प्रेम भेंट रखते हो, कथा कीर्तन, इहदा भी सानू लेखा देना पेगा। मैंने किसी ने सवाल किया सी, बैठे ने गुरु के प्यारे हरशविंदर सिंह जी, मैनू सवाल किया, कहन लगे ज्ञानी जी संगत जो आप जी को इतना प्यार कर दी है, माया देंदी, इन्हां वास्ते तुसी की करोगे? इन्हां दा लेखा किवें दोगे? तो मेरा एको ही जवाब सी, मैं इन्हां वास्ते पाठ भी करांगा, अरदास भी करांगा कि संगत दी चढ़दी कला रवे, नाम दे नाल जुड़े रहन। ये इस तरह लेखा मुकेगा। तो ये जो असुन दा महीना है, असू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਵੀ नहीं है, ਬਹੁਤੀ ठंड भी नहीं है, जिसनों असी कह सकते हाँ ठंडी मिठी रुत है। तो इस तरह की जो रुत होवे तो मन उछाले खांदा है। किस वास्ते उछाले खांदा है? जे इश्क मिजाजी तल ते मन उछाले खांदा है, तो मैं अर्ज करा इश्क हकीकी दुनिया विच भी मन उछाले खांदा है कि मैं रब नूं मिलां, मैं गुरु नूं मिलां। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, किस तरह मिलन होवे? मन तो उछाले खा रहा है, किवें मिलां? तो कोई ऐसी उक्ति, कोई ऐसी जुगती जो सानू मिला दवे। और जे किधरे असी इश्क मिजाजी दुनिया नूं वेखीए, उस तल नूं वेखीए, तो कई बारी असी मित्र नूं भी कह देने, तू फलाने बंदे नाल मेरी दोस्ती करा दे। वो कहता ठीक है। धार्मिक दुनिया दे विच इश्क हकीकी विच भी कहते ने कोई ना कोई मददगार होंदा है। तो मददगार तैनू जे चाहिदा है तो मैनू एक गल दस, तेरे अंदर जो उछाल खा रहा तेरा मन उमाहड़ा, तेरे अंदर उछाल कितनी को है, पहला ये दस। साहिब कहते ने मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। जदों तन विच प्यास होवे तो तन सेवा विच जुड़ जाता है। जे तन विच प्यास होवे तो हथ विच झाड़ू होवेगी, जां तां गुरु घर विच झाड़ू दे रहा है, जां जोड़े घर विच बैठे ने जोड़े दी सेवा करते पे ने, जां लंगर हाल विच बैठे ने सेवा करते पे ने। जदों तन विच प्यास होंदी है तो तन सेवा करता है, जदों मन विच प्यास होंदी है तो मन सिमरन करता है, पाठ करता है। है प्रभु मेरे तन विच भी प्यास है, मेरे मन विच भी प्यास है, कोई आन मिलावे माए। हे माँ कोई मैनू रब नाल मिला दे। कई बारी मैं अर्ज करना कि दुनियावी तल ते जदों किसी नूं आर्थिक चोट लग जाए, राजनीतिक चोट लग जाए, समाजिक चोट लग जाए तो रसना तो निकलता है ओए माँ। ठोकर लगती होवे, चोट लगती होवे तो शब्द माँ ही निकलता है। और धार्मिक दुनिया विच भी जे विछोड़े की चोट होवे तो भी मनुख कहता है होए माँ। कोई आन मिलावे माए, ए माँ मैनू कोई मिलावे। हुण कौन मिलाएगा? जिहड़ा आप मिलिया होएगा।
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ? ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਚ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ।
पर हाँ एक कोशिश करना, जदों रब की गल हो रही होवे, जदों प्रेम की गल हो रही होवे, तो प्रेम नूं चखण की कोशिश करना। ये ना होवे आप जी आए बैठे और चले गए, आप जी ने तो प्रेम रस चखिया ही नहीं। जिन्होंने ये प्रेम रस चख के देखिया, जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृपत रहें अघाए, और रज जाते हैं। सारिया चिंतावां मिट गई, सारे दुख मिट गए, सारे कलेश उन्होंने मिट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम रस चख लिया। हो सकता है इस गल नूं आप जी कितना पकड़ पाओ, जो समाधि है, समाधि एक अवस्था है, और ये जो समाधि है ਇਹਦਾ एक छोटा जिहा अंश जो है गृहस्थ धर्म विच है। थोड़ा जिहा समझना, क्योंकि कई बारी मैं अर्ज करना, जे क्रोध ते बोलना होवे आप जी सुनोगे, जे लोभ ते बोलना होवे आप जी सुनोगे, जे किधरे काम ते बोलना होवे तो 36 बंदियां ने सवाल कर लेने ने। इस करके मैं बहुता विस्तार ना करा, मैं एक इशारे मात्र नाल कह रहा कि समाधि का जो एक क्षण है वो गृहस्थ जीवन भी होता है। क्योंकि वो गृहस्थ जीवन भावें कुछ पल का होता है, उत्थे मनुख की चिंता भी खत्म हो जाती है, उत्थे मनुख के अंदर द्वेष भी खत्म हो जाता है, और उत्थे मनुख का मन एकदम शून्य ते पहुँच जाता है। जिहड़े गृहस्थी ने उन्होंने पता है। फिर जिहड़ी समाधि है वो एक विशाल है, उत्थे भी मनुख चिंता भुल जाता है, लाभ हानि भुल जाता है, जन्म मरण भुल जाता है, सब कुछ भुल जाता है समाधि दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम रस चख लिया। गृहस्थ दे विच दुनियावी प्रेम है, और धार्मिक दुनिया दे विच नाम दा प्रेम है। जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृपत रहें अघाए, रज गए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं छोटी जी गाथा रावण की पढ़ रहा सी। शिव जी महाराज का उपासक सी, ते शिव जी महाराज कहते ने रावण तेनों की चाहिए है? कहने लगे महाराज कुछ भी नहीं चाहिए। हद हो गई, कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी कहने लगे कुछ तो मंग ले। कहने लगे बस अपना हथ मेरे सिर ते रख दे, मेरे सिर ते रख दे। शिव जी महाराज कहन लगे जे मैं अपना हथ तेरे सिर ते ना रखा फिर? कहन लगे रावण ने अपना सिर ही कट के रख दिता। कहन लगे वो सिर भी किस कम दा जिस सिर ते तेरा हथ ना होवे। कितनी वड्डी गल कह दी। साडे कोल सिर जरूर है, पर गुस्ताखी माफ, गुरु नूं बेनतियां करिया करो, पातशाह तू अपना हथ मेरे सिर ते रख। समर्थ गुरु सिर हथधारी हो, मेरे सिर ते हथ रख। जिवें ही गुरु का हथ सिर ते आंदा है, विचों मार कढ़ियां बुरियाइयां सह तुठे नौनित पाई। गुरु का हथ मंगया करो, तेरा हथ मेरे सिर ते होवे। जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृपत रहें अघाए, और रज जाते ने, वो तृपत हो जाते ने। लेकिन एक ख्याल जरूर रखना, ये प्रेम उदों मिलता है जदों कोई निमरता के घर आता है। ये प्रेम उसनों मिलता है, ये उसनों नसीब आता है। इसनों थोड़ा जिहा समझना, थोड़ा जिहा। मनुख धन का त्याग कर सकता है, करते हैं। आप जी नूं कहा जाए कि गुरु घर दे विच आप जी ने 5 लाख देने ने, आप जी 1 मिनट विच कह दोगे हाँ मेरे वालों सेवा 5 लाख की, कह सकते हो। मैंने एक छोटी जी गल याद आ गई, तो आप जी ने गल सुन के हंसना भी है। एक गल है, किधरे ऐसे इलाके की मैनू नाम चेते नहीं आ रहा, उत्थे असीं 10 को बंदे गए सीगे, ते उत्थे 3-4 दिन रहना सी। ते साडा जिहड़ा आगू सी
तो मैं उन्होंने पूछया, भाई 5 दिन रवांगे, होटल का खर्चा बहुता है, पर गुरुद्वारे दे विच सानू रहन देणगे कि नहीं पता नहीं है, बहुत पुरानी जी गल है। तो लंगर का भी बंदोबस्त होएगा कि नहीं होएगा? वो कहता, ज्ञानी जी तुसी फिक्र ना करो, मैं बैठा होया, तुसी फिक्र ना करो। तो उसने खेड की खेडी, सेवादार नूं बुलाया, कहने लगे गुरुद्वारे का सैकटरी कौन है, उन्होंने बुलाओ। तो सैकटरी आया, कहने लगे हाँ जी दसो। कहने लगे असी कुछ पर्ची कटानी है और असी 2-3 दिन इत्थे रहना भी है, बिल्डिंग बन रही है। तो सैकटरी कहता हाँ जी दसो की सेवा। कहने लगे एक कमरा किन्ने का बनेगा? कहने लगे 10 लाख का। कहता एक कमरे की सेवा मेरे वालों लिख लो। सैकटरी तो खुश हो गया, एक कमरे की सेवा 10 लाख रुपए, मेरे वालों तुसी पर्ची कटो। 3-4 दिन उत्थे बहुत चंगी सेवा हुई। सेवादार नूं कहा इन्हों हर वेले पुछदे रहना, लंगर दे वेले, चाह दे वेले, जो कुछ भी इन्हों चाहिए पुछदे रहना इन्हों। जदों चौथे दिन असी जान लगे तो मैं उसनों पूछ लिया, तू कदे 100 रुपये भी नहीं देंदा किसी नूं? मैनूं समझ नहीं आ रही तेरी गल, ये तू 10 लाख रुपये किवें देवेंगा? तो वह की जवाब दिंदा, कहण लगे ज्ञानी जी दोबारा आवांगे तां ही तो देवांगे ना, असी किहड़ा आना है दोबारा इत्थे। मुक्तसर में अर्ज करा, कोई धन का दान कर सकता है, कोई गृहस्थ का त्याग कर सकता है, कोई इहदे विच शक नहीं है। राजनीति दे विच वड्डे तो वड्डे रुतबे का कोई त्याग कर सकता है, कोई वड्डी गल नहीं है। कोई मिनिस्टर होवे रिजाइन दे सकता है, कोई वड्डी गल नहीं। लेकिन कहते ने हंकार का त्याग करना बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। धन त्याग सकते हो, रुतबा त्याग सकते हो, घर त्याग सकते हो, लेकिन हंकार का त्याग सब तो वड्डा त्याग। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बोल की कहते हैं, कबीर माया तजी तो क्या भया जो मान तजिया ने जाए। माया छड़ दी, लेकिन माया का जो त्याग सी ओदा त्याग नहीं होया, वो पकड़ मजबूत है। तो साहिब कहते ने माया तजी तो क्या भया जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुनवर गले, मान सबे को खाए। वड्डे वड्डे ऋषि, वड्डे वड्डे मुनि मान विच गल गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए। मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं वड्डा। तो साहिब कहते ने आप त्याग बेनती करें, लेहो प्रभु लड़ लाए। गुरु दे कोल बैठ के आप त्याग बेनती करें, ऐ प्रभु मैनू अपने लड़ लगा, मैनू अपने चरना दे नाल जोड़, क्योंकि परमात्मा दे नाल जे मिलन हो गया, जो हर कंत मिलाया से विछुड़ कते ना जाए। इसनूं थोड़ा जिहा समझना, फिर मैं कथा की समाप्ति बुला रही हूँ। पति पत्नी का संबंध है, विछोड़े ते खड़ा है। मित्रां का जो संबंध है, विछोड़े ते खड़ा है। दो भरावां का मिलन है, विछोड़े ते खड़ा है। भैन भरा का मिलन है, विछोड़े ते खड़ा है। और जे किधरे कोई होर ना विछोड़े तो मौत तो एक ना एक दिन विछोड़ देंदी है। एक ना एक दिन मौत विछोड़ा कर देंदी है, परिवार दे नाल, धन दे नाल, मकान दे नाल। लेकिन एको ही एक जो संजोग है, मिलन है, ऐसा है जिसनों मौत भी नहीं विछाड़ सकती, नहीं विछोड़ सकती मौत। वो है गुरु का मिलन, जिसनों मौत भी नहीं विछोड़ सकती। तो साहिब कहते ने जो हर कंत मिलाया से विछुड़ कते ना जाए। प्रभवन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। कहते ने परमात्मा तो सिवाय ऐसा कोई संजोग नहीं है जो विछोड़े ते ना खड़ा होवे। तो अखीरली बोल, असो सुखी वसंदियाँ जिन्ना मया हर राय। जिन्ना ते रहमत है, जिन्ना ते गुरु की कृपा है, उन्हों का सारा जीवन सुखमय बतीत होता है। गुरु साहिब रहमतां करन, सारा जीवन आप जी का सुखमई होवे। बच्चियां दे सिर ते मेरा प्रयात रखे गुरु पातशाह। देशां विदेशां विच
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ।